Konnichiwa. Konnichiwa, hello. Okay, this is Shadarif Hussain, or we are at Tokyo. The purpose of making today's vlog, basically, we were getting and receiving a lot of questions regarding jobs in Japan, जिस पे already we are making or we already made certain vlogs. So आज हमारे साथ जो है लाइव एग्जांपल भी मौजूद हैं जो टोक्यो में जॉब कर रहे हैं, जिन्होंने यानी जॉब ले ली है आफ्टर फिनिशिंग हिज मास्टर्स. सो नसीम जो है हमारे साथ है. नसीम को सबसे पहला तो मैं कहूँगा कि नसीम थोड़ा सा अपना जो है वो इंट्रोडक्शन करवा दें. पाकिस्तान से कहाँ से बिलोंग करते हैं, बैचलर्स कहाँ से किया था, कैसे जापान आए और अब क्या कर रहे हैं. Hello, Assalamu alaikum. I am Naseem. I'm from Gujranwala and I did my bachelor's from UIT Lahore in city and regional planning. And in my final year, I actually planned to study, and I started looking for scholarship. And that time, JICA just started their scholarship, and that was the second batch, I think. And I prepared for 6 months, and then finally I got JICA scholarship, JICA Innovative Asia, and I studied 2.5 years, 6 months as a research student in Hiroshima, then two years for my master, and I studied transportation and urban engineering. At the same time, because in Japan the job hunting is like you should get job a year before your graduation. So after my graduation, I started working in a company, and now it's been a few months I'm working in a big Japanese construction company. A renowned Japanese construction company. Okay, so जिस तरह उन्होंने स्टार्ट में बताया कि कैसे उनकी जर्नी थी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम नसीम वुड बी कि जब आपने मास्टर्स कंप्लीट किया था और आपने जॉब ली है, तो नसीम बताइएगा क्या आपकी जॉब में जापानीज़ लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट थी और आपको जापानी कितनी आती है? Well, actually, if you plan to come to Japan and if you plan to work in Japan, I would definitely recommend you to learn Japanese, because that's the one thing very basic the companies look for in candidates. In my case, I just got a bit edge, and that is the company overseas branch I'm working in. That's why that it's not required, and the company is international. The project I'm dealing, they are actually, the client is the overseas client, so that edge I got. Otherwise, there is no way that you can survive here in Japan. So yeah, so it means that if you learn Japanese language and after learning, if you come to Japan, it would be very easy for you to survive here. But as Naseem said, that he's lucky that he got job in a company which is basically the section is dealing overseas projects. So definitely overseas means कि he is definitely English के अंदर work कर रहे हैं. Okay, so now Naseem, overall लाइफ कैसी है जापान की, और नॉर्मल जिस तरह आप वर्क कर रहे हैं या ऑन एवरेज आपके साथ लोग काम कर रहे होंगे तो PKRs में और ये बताइए भी उर्दू में ताकि पता चले, तो ऑन एवरेज कितना लोग अर्न कर रहे हैं यहाँ पे कंपनी में पाकिस्तानी PKR में, अगर हम आज की कन्वर्जन रेट फॉर एग्जांपल लगा ले तो? यहाँ पे जो बैचलर्स, मास्टर और PhD की जॉब होती है वो समहाउ इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, और नॉर्मली वो तकरीबन 3.25 लाख 3.5 लाख से शुरू होती है, और इसी के राउंड अबाउट कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता ज़्यादातर कंपनीज़ का. तो बस उसके बाद फिर ये कह लें कि बोनसेस होते हैं साल में. कुछ कंपनीज़ 3 देती हैं, कुछ 5 देती है, कुछ 2 भी देती है. बोनसेस ये होते हैं कि आपको अगर 2 बोनसेस हैं तो 2 मंथ की एक्स्ट्रा सैलरी होगी, 5 है तो 5 मंथ की एक्स्ट्रा सैलरी होगी, मतलब आप 12 मंथ में आपको 17 मंथ की सैलरी मिलेगी. तो उस वाले से तो काफ़ी बन जाती है अगर पाकिस्तान से कम माल काफ़ी बन जाता है. हाँ, माल काफ़ी बन जाता है. बड़ा बेसिक एक्चुअली हम अपने ऑडियंस के लिए समराइज़ भी कर रहे हैं ना बातों को. तो नसीम ये बताइएगा, एक बड़ा बुनियादी सवाल होता है और जो सुना गया है जापान के बारे में, ऑल्दो मॉडर्न जापान
जहाँ का मैं एक्सपीरियंस मैं भी कर रहा हूँ, तो काफ़ी चेंज हो रहा है। बट कि इनके बारे में कि ये बिल्कुल यहाँ पे इतनी टफ रूटीन्स हैं, वर्क रूटीन टफ हैं और आपको उकता देते हैं, या यहाँ पे एक इम्प्रेशन है दुनिया में कि जापान में ओवर वर्किंग बहुत ज़्यादा है और आपको यानी जॉब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा देते हैं। अब आप क्योंकि इस टाइम अगर अपनी कंपनी को फॉर एग्जांपल मैं आपसे लूँगा, तो आप इस बात को क्या सेकंड करते हैं, या आप समझते हैं कि जापान भी चेंज हो रहा है, जो कि सर्कमस्टांसेस हैं, अब चीज़ें मतलब फ्लेक्सिबल हो रही हैं? अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। Obviously ये बड़ी it's very famous thing that Japanese are very workaholic, but the thing it's a bit changing. The trend is changing because previously people they follow the very traditional what's that, the quote which is like die for the company. So people actually spend their whole life for the company and they actually die for the companies. But now it's not like things that. Are changing. Things are a bit changing, and especially like if the company is a company having an international staff, they know that there is difference, and especially like if they have the experience of working overseas, so they can understand. And especially what you say, that no, it's not like that. A bit, yes. या सो एक्चुअली नसीम, जब मैंने जैसे आपसे सवाल किया तो मेरा ऑलरेडी, क्योंकि और भी काफ़ी सारे पाकिस्तानी जो दोस्त हैं जिनसे जो जॉब्स कर रहे हैं, तो वो भी इंटरनेशनल कंपनीज में ज़्यादातर कर रहे हैं, तो वो यही बता रहे थे, उन्होंने भी सिमिलर बताया था कि अब थिंग्स हैव बीन चेंजिंग डेफिनेटली। जो आप बात बता रहे हैं, जब ये ग्रो कर रहे थे पर्टिकुलरली आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, जब इन्होंने मुल्क उठाना था, तो इन्होंने यहाँ तक किया कि हमारे बता रहे थे दोस्त को, उनके प्रोफेसर बताते थे कि हमने शादियाँ तक भी नहीं की जापान में, तभी अब इनका आपको पता है बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो इन्होंने ये मुल्क के साथ सिंसेरिटी थी, और इनका था कि अब हमने जो है ना दुनिया को दिखाना है कि जापानीज़ कौन है। चलें, तो लास्ट क्वेश्चन जो है वो अगर हम करें आपसे, आपने एक ऑन एवरेज एक इनकम बता दी कि 3.5 लाख पाकिस्तानी से स्टार्ट होती है, आगे भी जाती है, बोनसेस भी हैं, तो लाइफ इन जापान अब आप रह रहे हैं, खासकर टोक्यो में अगर आप बात कर रहे हैं, आप यहाँ पे हैं, तो ओवरऑल आप क्या रिकमेंड करते हैं कि लाइफ अच्छी है? क्वालिटी ऑफ लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ, फैसिलिटीज़, एक्सेसिबिलिटीज़, इन्वायरमेंट, नेचर वाइज, और क्या क्या रिकमेंड करते हैं कि आना चाहिए जापान के अंदर ओवरऑल आप? Actually, I think it's worth to work in Japan and visit in Japan. Everything, infrastructure is up to the mark. You will have a very kind of modern life if you plan to stay here. Definitely, we cannot compare with Pakistan. And I think many other countries yes, as well, even developed countries. Yes. Particularly मैं नसीम की बात को थोड़ा सा काट रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी around like 25-6 months हो गए in Japan. So the thing I saw here, or while having a discussion with many people from all over the world, and I met some people from Europe, and they don't want to go Europe again because they said the environment here, the peace here, there is no crime and no racism at all. Yes. This is what we have seen. नसीम तो मेरे से भी पहले से यहाँ पे 1 साल से हैं, नवीद ने भी गुजारे हैं। आई नेवर सॉ कि मैंने कौन क्या पहना हुआ है। मैं अक्सर मेरा अपना अगर स्टाइल है तो मैं जिस तरह ये कैप कपड़े पहन के रखता हूँ, तो बल्कि कभी तो तस्वीरें बनाने आ जाती हैं लोग आपके साथ। बट अब आप देखिए यूरोप में ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, वहाँ पे रेसिज्म है, नकाब अगर आप हिजाब किया हुआ है तो उसके ऊपर। सो जैसा नसीम ने रिकमेंड किया कि जापान आना चाहिए, लेट्स कम टू जापान। सो हमने देखा प्रोज कॉन्स होते हैं। वर्किंग तो डेफिनेटली देखें, आप जितना आप सैलरी ले रहे होते हैं तो आपसे काम तो दुनिया में हर कंपनी लेती है, फिर तो वो काम हो रहा है। जापानीज़ सीख के आएंगे तो प्रेफरेबली डेफिनेटली वो आपका। लेकिन अभी जिस तरह ताहिर लड़का आया या नसीम, जिस तरह के मैं और काफ़ी सारे लोगों को जानता हूँ जो डायरेक्ट पाकिस्तान से आए हैं विदाउट लर्निंग जापानीज़, लेकिन दे आर प्रोफेशनल, क्योंकि कोई आईटी में आ रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर में आ रहे हैं, तो उनके लिए कंपनीज। अब मैं देख रहा था कि 2025 तक जापान का टारगेट है कि ये कोई पता नहीं 100 बिग स्टार्टअप्स जापान के अंदर स्टार्ट करने का प्लान, क्योंकि सबको पता है कि अब आईटी का दौर है, तो पूरी दुनिया से लोग सीएस के लोगों को, आईटी के लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ग्रैब कर रहे हैं। सो ओवरऑल नवीद को मैं कहूँगा कि लास्ट व्यू दिखाएं और किंग भी दिखाएं जहाँ इनका पैलेस है, ये किंग का। ये देखें यहाँ पे रह चुके थे किंग, और ये इनका गार्डन है मशहूर। यहाँ पे एंट्री ऑल दो अलाउड नहीं है, लेकिन इन्होंने बेहतरीन सिस्टम यहाँ पे रखा हुआ है। सो सी यू, सायोनारा, अल्लाह हाफिज़।